إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں اور جناتوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو صراط مستقیم اور سیدھی راہ کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا. بے شمار انبیاء و رسول اس دھرتی پر آئے اور ان سارے انبیاء اور رسول نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، برائیوں سے روکا. بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اپنے انبیاء اور رسول کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اپنے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان کا کیا حشر کیا، کیا طرح طرح کی دردناک سزائیں اور عذابات اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبی فہرست ہے انبیاء اور رسول کی. لیکن وہ سارے انبیاء، وہ سارے رسول جو اس دھرتی اور زمین پر آئے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، وہ ایک خاص خطے، ایک خاص قوم، ایک خاص قبیلے، ایک خاص ملک کی طرف بھیجے جاتے تھے. لیکن ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. انسانوں کے لیے بھی آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، جناتوں کے لیے بھی آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ مسلمانوں کے بھی رسول ہیں، کافروں کے بھی رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی لوگوں سے کہو کہ میں تمام لوگوں کا رسول ہوں، تمام لوگوں کا، اس روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو،
बादशाह हो, फकीर हो, मजबूर हो, मजलूम हो, हर एक जिन्नो इंस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बना कर देते। कोई इससे बरी नहीं है। हर एक को आपकी नबूवत और आपकी रिसालत को तस्लीम करना पड़ेगा, तभी जाकर वो इंसान मुसलमान होगा, तभी जाकर वह अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाऊं, हर नबी और रसूल की फजीलत मुसल्लम है। वो अपने दौर के, अपने वक्त के अल्लाह के नजदीक सबसे बरगुजीदा हस्तियां थीं, सबसे बड़े इबादत गुजार, सबसे बड़े नेक और अल्लाह वाले अपने दौर के हर नबी और रसूल हुआ करते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो आपको एजाज हासिल है, वो मखलूक में, कायनात में किसी इंसान को, किसी जिन्नात को, किसी फरिश्ते को मकाम हासिल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया और रसूल के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत तो यह है कि आप रसूल बनाए गए, तो आपके बाद कोई अब रसूल नहीं बनाया जा सकता। आपकी रिसालत पर रिसालत खत्म हो गई, आपको नबी बनाया गया तो नबूवत खत्म हो गई, आपके बाद अब कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। यह मकाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन आप ये जान लें कि माह रबीउल अव्वल की जब आमद होती है, लोग तरह तरह की मजलिसें मुनाकिद करते हैं, शिर्क व बिदअत का गरम बाजार चलता है, नात खानी होती है, कव्वालियां होती हैं। आप सल्लम की तारीफ तो करना हर वक्त है और हम सबको करना चाहिए। दरूद व सलाम नबी पर हर वक्त पढ़ना चाहिए। कोई महीना नबी सल्लम की तारीफ के लिए, नबी पर दरूद भेजने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए ना तो कोई महीना खास है, ना कोई साल खास है, ना कोई हफ्ता खास है, ना कोई दिन, ना कोई वक्त खास है। आप जब भी जितना भी नबी का जिक्र खैर करेंगे, आप जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजेंगे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना जिक्र करेंगे, उतना आपके लिए दुनिया और आखिरत में खैर का बाइस होगा। कोई वक्त मखसूस ना करें। नबी की रिसालत, नबी की शान इतनी छोटी नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन या रात में एक मजलिस कायम करके आपकी सीरत को पढ़ाया जाए, आपकी सीरत को सुनाया जाए, इतने ही में आपकी शान, आपकी रिसालत को बयान किया जा सकता है। दुनिया के कोई ऐसी किताब आज तक लिखी नहीं गई, दुनिया का कोई मुकर्रिर आज तक पैदा नहीं हुआ कि एक रात में, एक दिन में, चंद वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर सके। कोई वक्त खास नहीं है नबी की तारीफ के लिए, कोई वक्त खास नहीं है नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए। आप हमेशा पढ़ें, आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपकी जिंदगी में खैर व बरकत पैदा होगी। एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं जो दुआ मांगता हूं, मैं अपनी दुआ में सुलुस हिस्सा आप पर दरूद भेजता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेहतर है, और ज्यादा कर लो तो और बेहतर है। कहा, अल्लाह के नबी, अपनी दुआ में मैं सिर्फ आधा वक्त आप पर दरूद भेजूंगा। आपने कहा, बेहतर है, और बढ़ा लो तो और तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, 1/3 हिस्सा मैं सिर्फ आप पर दरूद भेजूंगा। यही बात कहते रहे, कहा, अल्लाह के नबी, पूरी दुआ में सिर्फ आप पर दरूद ही भेजूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मामला ऐसा है तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी मसाइब व मुश्किलात हैं, जितने रंज व अलम हैं, ये सारे के सारे छट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए बरकत और खैरात के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। हदीस के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है, जो इंसान जब भी कोई दुआ करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर मुझ पर दरूद ना भेजे, उसकी दुआ ऊपर तक नहीं उठाई जाती। ये मेरे नबी का मकाम है। एक रात में आप नबी की क्या तारीफ करेंगे, क्या सीरत बयान करेंगे, शान रिसालत, शान मुस्तफा आप क्या बयान करेंगे एक रात के अंदर?
ये ढोल ताशे, ये कव्वालियां, ये नाच गाने, ये मर्द और जन का इख्तिलात, ये इसराफ और फजूल खर्चियां और तरह तरह की इस्लाम की, रसूल की नाफरमानियां, रसूल की सुन्नतों का मजाक है ये। नबी जब से आए हैं सहाबा भी आपकी तारीफ किया करते थे, सहाबा भी आपकी शान में नज़्में पढ़ा करते थे, आपकी शान में वो लोग भी अशार कहा करते थे, लेकिन कोई वक्त खास नहीं था उनके जमाने में। हज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, इसके मुताल्लिक से मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करना चाहता हूं। हज़रीन गिरामी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दो तरीके से, एक तरीका तो यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और पहचान का अहमद या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से। क्या आप एक इंसान है, आपका नाम मोहम्मद है, आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, आपकी वालिदा का नाम आमिना है, आपके चचा हमजा हैं, अब्बास हैं, अबू तालिब हैं, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं, आप बनु हाशिम के सबसे अशरफ और सबसे आला खानदान से। इस एतबार से दुनिया में किसी को आपसे इख्तिलाफ नहीं। कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का भी इस नाहिये से आपसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं करते थे, वो भी आपको मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ही मानते थे। तो इस पर तो सारी दुनिया मुत्तफिक है। लेकिन दूसरी हैसियत से जो आपकी पहचान है, नबी और रसूल होने की हैसियत से, नबी और रसूल होने की हैसियत से कुफारे मक्का को हमेशा आपसे इस नाहिये से इख्तिलाफ रहा। सुलह हुदैबिया तक वो आपको नबी और रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब शराइत दोनों तरफ से सुलह की बात, अमन की बात जब चल रही थी, दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, शुरूत लिखे जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली से लिखवाया, मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिहि या मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह, लिखो अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो कुफारे मक्का ने एतराज किया, हम आपको रसूल नहीं मानते, हम आपको रसूल नहीं मानते, नबी नहीं मानते, आप लिखे मोहम्मद की तरफ से, रसूल का लफ्ज हटाएं, रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाएं। हज़रत अली से कहा रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हज़रत अली ने कहा मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि अपने हाथ से लिखकर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा सकूं। ये गैरत थी, ये गैरत थी, ये ईमान था, ये जुर्रत थी। कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का सामने बैठे हुए हैं, शराइत तय हो रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अली की जुर्रत और बहादुरी देखिए, उनके ईमान की मजबूती देखिए। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने हाथ से लिखकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फिर मिटा दूं। हमारे सामने बेशुमार हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन कभी भी इतनी ईमानी गैरत हमारे अंदर पैदा नहीं होती कि मोहम्मद का फरमान आ चुका है, अल्लाह की आयत पढ़कर हमको सुनाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे हाज़रीन गिरामी, सुलह हुदैबिया तक ये मसला रहा, लेकिन जब मक्का फतह हुआ, सारे लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से आपको जाना, आपको पहचाना, आपकी रिसालत और नबूवत को तस्लीम किया। हाज़रीन गिरामी, इसी नाहिये से हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और आपकी पहचान की जरूरत है। इसी नाहिये से, रसूल और नबी होने की नाहिये से हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत को, आपकी आज़मत को, आपकी हैबत को, आपकी इज्जत और अज़मत को पूरी दुनिया में बयान करने की जरूरत है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से हम अपने नबी से प्यार करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी की इत्तिबा का दावा करते हैं। इस नाहिये से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया में बावर कराने की जरूरत है। रसूल और नबी होने की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दुनिया वालों के सामने बयान करने की जरूरत है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से। आपको मैं बताता हूं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाहिये से, नबी और रसूल होने की नाहियत से कायनात का जर्रा जर्रा आपको पहचानता है। जर्रा जर्रा, वो शजर हो, वो हजर हो, वो पहाड़ हो, वो आसमान की मखलूकात हो, वो जमीन की मखलूकात हो, वो चाहे अक्ल दानिश रखने वाले इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो या बेजुबान ये जानवर हो, हर एक नबी और रसूल होने की हैसियत से आपकी अजमत का मुअतरिफ है, आपकी हैबत को पहचानता है, आपकी इज्जत और आजमत को जानता है। नबी और रसूल होने की हैसियत से मैं आपको बताता हूं कि कायनात का जर्रा जर्रा आपकी रिसालत और आपकी नबूवत की अजमत को कितनी अहमियत देता है, लेकिन ये इंसान है जो आपको नबी और रसूल होने की हैसियत से आज तक नहीं पहचान सका है। आपको बतलाऊं, जितने अंबिया, जितने रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन पर भेजे हैं, ऐसे आदम का जमाना कब है, आदम के बेटों का जमाना कब है, आदम की औलाद का जमाना कब है, ये सारे जितने भी अंबिया और रसूल आए, इब्राहिम हो, इस्माइल हो, मूसा हो, ईसा रूहुल्लाह हो, सारे अंबिया से ये अहद लिया गया था। अल्लाह ने कहा था मेरे नबी की शान देखें, मेरे नबी की रिसालत की आजमत को देखें, अल्लाह के इस फरमान को सुने। अल्लाह ने सारे अंबिया से यह अहद लिया था कि अगर तुम्हारे रहते रहते इस दुनिया में जिंदा रहते हुए अगर मेरे आखिरी नबी आ गए, तुम सबको उन पर ईमान लाना पड़ेगा, तुम सबको उनकी मदद करनी पड़ेगी, तुम सबको उनकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। वो आदम हो, वो इब्राहिम हो, वो मूसा कलीमुल्लाह हो, वो ईसा रूहुल्लाह हो, दुनिया के जितने अंबिया और रसूल आए हैं सबको ये अहदो पैमान लिया गया था, तुम्हारी जिंदगी में अगर नबी आखिरी आ गया उस पर ईमान लाना पड़ेगा। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न, तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और जरूर तुम उसकी मदद करोगे, उसकी इत्तिबा करोगे, उस पर ईमान लाओगे। हर नबी को आपकी पहचान है, हर नबी आपको जानता है रिसालत की हैसियत से, रसूल और नबी होने की हैसियत से। आप देखें मेराज की जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर बुलाए गए, अल्लाह ने आपको बुलाया, अल्लाह के जब मेहमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने, ये शान, ये रुतबा, ये मकाम किसी नबी को हासिल नहीं। अल्लाह ने बुलाया, एक रात में पूरा सफर तय किया, जन्नत व जहन्नम को देखा, अल्लाह से बातें की, सातों आसमान की सैर की। हालांकि एक आसमान और दूसरे आसमान की जो दूरी है, जो फासला है, दुनिया की कोई मखलूक उसको नहीं जानती। यह और बात है कि बाज आसार में यह बात बयान की गई है कि 500 साल की मसाफत है। ये एक आसमान और दो आसमान के दरमियान जो दूरी है, जो खला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद घंटों में वो तय किया, चंद घंटों में वो तय कर करके फिर मक्का आ गए अपने घर। मेराज की हदीस को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं, आसमान के दरवाजे खोले जा रहे हैं, अंबिया देखते ही कहते हैं मरहबम बिल अखी सालिह वन नबी सालिह। ऐसे आदम जब देखते हैं, ऐसे आदम क्या कहते हैं, मरहबम बिल अखी सालिह व इब्न सालिह, खुशामदीद मेरे नेक भाई, नेक बेटे। आखिर कौन बतलाया आपको? आप सोचिए, आपका चर्चा कहां नहीं है, जमीन हो कि आसमान हो, फरिश्ते हो कि इंसान हो, जिन्नात हो या हैवान हो, हर एक की जुबानों पर आपका चर्चा, हर एक आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपकी आजमत को जानता है, आपकी हैबत को मानता है, आपकी इज्जत और तौकीर दुनिया की हर मखलूक करती है, कोई तारुफ नहीं। देखते ही हर नबी क्या कह रहा है, खुशामदीद मेरे नेक भाई, खुशामदीद मेरे नेक भाई। हर एक आपको मुबारकबाद पेश कर रहा है, हर एक को हर एक नबी आपको अहलन व सहलन व मरहबन कह रहा है। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की इमामत कराई, सारे अंबिया ने आपको इमाम बनाया, हर एक को आपकी पहचान थी, हर एक को आपकी मारिफत थी। आप देखें मलाइका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर पहचानते थे, किस कदर उनके यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ था, आपका चर्चा था। आसमान पर जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी को लेके गए, हर आसमान पर कई दरवाजे हैं, कोई नहीं जा सकता, दरवाजे लगे हुए हैं, कैसा है, कितना बड़ा है, वो बात की बात है।
हर आसमान पर दरवाजे हैं, पहरेदार फरिश्ते हैं। जिब्रील ने दस्तक दी, कहा मन, कहा ना जिब्रील, कौन है दस्तक दे रहा है? कहा मैं जिब्रील हूं, फरिश्तों का सरदार हूं। नहीं दरवाजा खुला। कहा आपके साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद है। दरवाजा खुल गया। नबी का नाम लेते ही कोई तारुफ नहीं, कोई नसब नहीं, कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं। कहा मेरे साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फौरन दरवाजा खुल जाता है। फरिश्ते आप पर दरूद सलाम भेजते हैं। हर आसमान पर सिर्फ आपका नाम जिब्रील ने बताया। सारे फरिश्तों को मालूम था, सारे फरिश्तों का आपका नाम मालूम है। आपकी रिसालत और आपकी नबूवत का चर्चा सारे आसमानों में हो रहा है। जिब्रील कह रहे मेरे साथ मोहम्मद हैं। मोहम्मद का नाम लेते ही फरिश्ते दरवाजे खोलते गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदियों पर चढ़ते गए, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए, जहां कोई नहीं जा सकता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। आपको बताऊं, इस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल नबूवत और रिसालत की आजमत का चर्चा आसमानों में है। एक फरिश्ते ने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह मुझे जमीन पर जाने की इजाजत दे दे, जमीन पर जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा आप क्यों जमीन पर जाना चाहते, क्या इससे पहले कभी जमीन पर गए हैं? उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह आज तक तो जमीन देखी भी नहीं, जमीन तो मैंने देखी ही नहीं है, जमीन पर इससे पहले नहीं गया। उसने कहा अल्लाह मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे, मैं जमीन पर जाकर तेरे महबूब का दीदार कर सकूं, तेरे आखिरी नबी से मुलाकात कर सकूं, उस पर सलाम भेज सकूं, उस पर दरूद भेज सकूं, उसको बशारतें सुनाऊं। अल्लाह ने कहा ठीक है, मेरे महबूब का नाम ले लिया है, मेरे महबूब का वास्ता दे रहा है, जाओ मैं तुम्हें जमीन पर भेजता हूं। वो फरिश्ता जमीन पर अपने रब से इजाजत लेकर आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करता, कौन बताया आपको? वो फरिश्ता डायरेक्ट नबी के पास आता है, आपसे सलाम करता है, आप पर दरूद भेजता है और बशारत देता है। क्या बशारत देता है? अन्नल हसना वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना। अल्लाह के नबी, अल्लाह से मैंने जब इजाजत तलब की आपसे मुलाकात करने की, आपका दीदार करने की, आप पर दरूद और सलाम भेजने की, अल्लाह ने मजीद एक खुशखबरी देकर मुझे भेजा है। कहा जाओ मेरे महबूब का दीदार करने के बाद, उनसे सलाम करने के बाद ये बशारत भी देना कि आपके जो दो प्यारे नवासे हैं हसन हुसैन जो हैं, ये खुशखबरी सुनाओ कि ये तुम्हारे नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार बने। जरा सोचिए, ये फरिश्ते, इनकी तरफ नबी रसूल नहीं बनाकर भेजा गया, इनको नबी की नबूवत और नबी की रिसालत का मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। वो तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। लेकिन ये फरिश्ते मेरे नबी की नबूवत और रिसालत की आदमत को इस कदर जानते हैं, इस कदर पहचानते हैं, नबी की नबूवत की रिसालत की आदमत व हैबत को इस कदर जानते हैं कि रब से इजाजत लेकर जमीन पर आना चाहते हैं। जरा सोचिए, आसमानी मखलूक जमीन पर आना चाहती है नबी से मुलाकात करने के वास्ते। तो ये अंबिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते पहचानते हैं, ये फरिश्ते भी मेरे नबी को जानते और पहचानते हैं। हाज़रीन गिरामी, यही नहीं, सिर्फ पहचान ही नहीं है, बल्कि हमेशा ये सारे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजा करो, अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजा करो। जरा सोचो, जिनको मुकल्लफ नहीं बनाया गया है वो तो दिनों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, सलाम पढ़ते हैं। हम इंसानों को अपने नबी की रिसालत पर ईमान लाने का मुकल्लफ बनाया गया है, उनकी इत्तिबा करना हम पर वाजिब है। हम अपने नबी पर कितनी मर्तबा दरूद भेजते हैं? जरा बोलिए, हम अपने नबी पर कितनी मर्तबा दरूद पढ़ते हैं? सुबह शाम 10-10 मर्तबा पढ़ना दरूद मुस्तहब है, नमाजों में पढ़ना दरूद वाजिब है। बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां पर दरूद पढ़ने को शरीयत ने इस बात की हमको तालीम दी है, लेकिन हम और आप हैं कि अपने नबी की रिसालत और अज़मत को हम पहचान नहीं सके।
हम अपने नबी की हैबत को जान नहीं सके, हम अपने नबी की आजमत को नहीं जान सके। अगर हम अपनी नबी की आजमत को जानते, अगर हम अपनी नबी की हैबत को समझते, अगर हम अपने नबी की इज्जत और आजमत को पहचानते, तो जिस तरह फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दरूद पढ़ते हैं, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करते। मेरे नबी ने खुद उम्मत से इस बात की गुजारिश की है, सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लु अलैया उम्मती, मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, मेरे ऊपर दरूद भेजा करो। लेकिन ये उम्मत जो अपने नबी की नबूवत का इकरार तो करती है, ईमान लाने का दावा करती है, मोहब्बत का दावा करती है, लेकिन फिर भी अपने नबी पर दरूद भेजने के लिए, अपनी नबी की इत्तिबा करने के लिए ये दुनिया उसको इजाजत नहीं दे। हाज़रीन गिरामी, यही नहीं बल्कि ये जिन्नात जो हमें और आपको दिखाई नहीं देते, हमें और आपको दिखाई नहीं देते, ये आग से पैदा की गई मखलूक, ये भी हमारी नबी की रिसालत और उसकी नबूवत की अज़मत को जानती और पहचानती। इनको भी इसकी मारिफत हासिल है। कई मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों के पास दावत तबलीग के लिए भी गए। एक मर्तबा तो जिन्नातों ने आपको उठा ही लिया, मक्का से उठा लिया और अपने पास लेकर गए। वहां भी आपने दावत तबलीग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। जिन्नातों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुना, उसी वक्त ईमान ले आए, उसी वक्त ईमान ले आए जिन्नात कहते हैं वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल कुरान, अल्लाह ने कुछ जिन्नातों को भेजा, मुतवज्जे किया, नबी तिलावत कर रहे हैं, जिन्नात सुन रहे हैं। जो अपनी कौम के पास पहुंचे, अपनी कौम से कहा अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, ऐ जिन्नातो, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है, हम उस पर ईमान लाए हैं और हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी भर अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये जिन्नात है, एक मर्तबा कुरान सुनकर इस बात का अहद करते हैं कि हम जिंदगी भर कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। लेकिन ये इंसान है, रोजाना कुरान सुनता है, रोजाना कुरान सुनता है, रोजाना कुरान पढ़ता है अपनी नमाजों में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कितनी मर्तबा अपनी जुबान से पढ़ता है। लेकिन इस इंसानों की जिंदगी में शिर्क की भरमार है, शिर्क की भरमार है, कदम कदम पर शिर्क कर रहा है, बात में शिर्क, अफआल में शिर्क, तिजारत और कारोबार में शिर्क, हर एतबार से इस शिर्क में उम्मत डूबी हुई। जरा सोचे कि ये इंसान कितना गया गुजरा है, ये इंसान कितना गया गुजरा है, कितना सिराते मुस्तकीम से भटक गया है, सीधी राह से कितनी दूर निकल गया है। जिन्नात एक मर्तबा कुरान सुनकर यह हद करते हैं कभी शिर्क नहीं करेंगे। ये उम्मत बार बार कुरान सुनती है, रोजाना सुनती है, खुद पढ़ती भी है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में शिर्क की भरमार है। ये फर्क है हम में और जिन्नातों में मेरे भाई। तो जिन्नातों को भी अपनी नबी की अज़मत और रिसालत की पहचान थी, उसकी मारिफत थी। यही नहीं बल्कि आप देखें, ये जमादात जो हैं, ये तो अक्ल दानिश वाली मखलूकात हैं, फरिश्ते और जिन, ये तो इनके पास अक्ल है, दानिश है, होशमंदी है, ये तो नबी की रिसालत और आज़मत को तो पहचानते हैं। लेकिन ऐसी मखलूकात जिनके पास अक्ल भी नहीं, जिनके पास अक्ल भी नहीं, वो मखलूकात भी मेरे नबी की रिसालत और नबूवत की आज़मत को इस कदर पहचानते हैं कि मोहब्बत का दावा अपनी जुबान से करते हैं। आप देखें उहुद पहाड़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उहुद पहाड़ का जिक्र करते, किसी चीज की मिसाल देनी होती आप उहुद पहाड़ से देते। कहा कि दुनिया के मेरे बाद जितने आने वाले इंसान हैं, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दें, मेरे साहबा की बराबरी नहीं कर सकते। कहा कि जनाजे की अगर कोई नमाज पढ़ता है फिर मिट्टी भी देता है तो 2 क़ीरात उसको सवाब मिलता है। लोगों ने कहा क़ीरात क्या? कहा उहुद पहाड़ की बात। तो बेशुमार मौके पर आप सल्लम उहुद पहाड़ से इतनी मोहब्बत करते थे कि बार बार उसी के जरिया मिसाल लोगों को दिया करते थे। क्यों मोहब्बत करते थे? उसकी एक वजह थी, उसकी एक वजह थी। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है मुस्लिम की, हाज़ा उहुद व हुवा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु,
ये जबल उहुद है, ये भारी भरकम सख्त पहाड़ चट्टान है। ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। क्या आजमत है उहुद पहाड़ की। नबी की मोहब्बत उसे हासिल है, हमें और आपको हासिल नहीं हो रही। एक जमादात, एक सख्त चट्टान, एक पहाड़, एक पत्थर जिसके पास अक्ल नहीं, जिसके पास बसारत नहीं, जिसके पास समाअत नहीं, जिसके पास जुबान नहीं, कुछ भी इजहार करने के लिए नहीं है, लेकिन नबी से इस कदर मोहब्बत थी कि नबी ने अपनी उम्मत को इस बात की गवाही दी, ये वो पहाड़ जो सामने दिख रहा है तुमको, ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मुझसे मोहब्बत करता है। और इस कदर फरमाबरदार है ये वो पहाड़ कि नबी की एक बात सुनकर किस कदर सहम जाता है, थम जाता है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अनस बिन मालिक रावी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े और आपके साथ अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे। पहाड़ हिलने लगा, उहुद पहाड़ हरकत में आ गया, नबी वहां पर मौजूद है। शौक में पहाड़ हिलने लगा, हरकत करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर से मारा उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैर से मारा, कहा उहुद, ए उहुद, ठहर जा, ठहर जा, हिलना बंद कर, लरसना बंद कर, तेरे ऊपर नबी खड़ा है, तेरे ऊपर नबी खड़ा है। अचानक कहते हैं, अल्लाह के नबी का ये जुमला सुनते ही इतना बड़ा पहाड़ जिसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है और सोचो फिक्र के लिए अक्ल नहीं है, नबी ने कहा उठ। ये चार जुमले नबी के सुनकर इस कदर थम गया, सहम गया, हिलना और लरसना बंद हो गया। ये पहाड़ है, ये सख्त पहाड़ है, इस पहाड़ से भी सख्त हमारे दिल हो चुके हैं। इस उम्मते मुस्लिमा के दिल उस पहाड़ से भी सख्त हो चुके हैं, उस चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। नबी का फरमान जिंदगी भर सुनते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते हमेशा नबी की हदीसें सुनते रहते हैं। नबी के फरामीन उनकी कानों की समाज से टकराते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वो इस्लाम से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, नबी की सुन्नतों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। नबी की सुन्नतें, नबी की हदीसें पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद इस पहाड़ जैसे दिल से भी ज्यादा सख्त दिल इस इंसान के हो गए। जरा सोचिए, वो पहाड़ है, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात अपने आप को कहते हैं। इंसान के पास अक्ल है, दिमाग है, सोचो फिक्र की सलाहियत अल्लाह ने दी है, बोलने के लिए जुबान है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, लेकिन फिर भी हम इबरत हासिल नहीं करते, फिर भी हम नसीहत हासिल नहीं करते, फिर भी हम अपने नबी की सुन्नतों को जानने के बावजूद, नबी की हदीसों को सुनने और पढ़ने के बावजूद भी अपनी नबी की सुन्नतों की इत्तिबा नहीं करते। कितना हम गए गुजरे हैं, जरा सोचिए। वो पहाड़, ये इंसान, क्या मुआजना है दोनों में? कोई मुआजना नहीं। लेकिन वो पहाड़ नबी की एक बात सुनकर फौरन ताबेदारी में लग जाता है, फौरन आपके हुक्म को तस्लीम करता है, आपकी फरमान की इत्तिबा करता है, वो लरसना बंद हो जाता है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, अबू हुरैरा रावी हदीस है, गारे हिरा आप सबने सुना है, देखा भी होगा देखने वालों ने, जहां पर पहली वह नाजिल हुई मेरे नबी पर, जहां आपकी नबूवत और रिसालत की इब्तिदा हुई, आप खड़े हुए हैं, आपके साथ कई सहाबा हैं, उसमें हज़रत अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, कई सहाबा आपके साथ खड़े हुए हैं। फतहर्रकतिस सखरा, चट्टान हिलने लगी, हरकत करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्कुन, अरे पहाड़ चट्टान सुकून से रहा, सुकून से रहा, हिलना बंद कर। फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीद, तेरे ऊपर, तेरे सीने पर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, एक शहीद खड़ा है। नबी की ये बात सुनते ही इतना बड़ा पहाड़, इतनी सख्त चट्टान, उसका दिल पिघल गया। उसने फौरन नबी की इत्तिबा की, नबी की बात सुनते ही, नबी की बात मान लेते ही उसने हिलना बंद कर दिया। जरा सोचो मेरे भाइयों, जरा सोचो, ये चट्टानें, ये पहाड़, अल्लाह ने सही कहा,
चंद ऐसे लोग हैं जिनके दिल इन पहाड़ों से भी ज्यादा, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वो हम और आप हैं, हम और आप हैं वो, कि नबी के फरामीन को सुनते सुनते उम्रें खत्म हो गई, उम्रें खत्म हो गई, जवाने से बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, कदम के अंदर इतनी ताकत नहीं कि चल फिर सके, लेकिन इसके बावजूद नबी की सुन्नतों की कोई परवाह हमारी जिंदगी में नहीं। हाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत की आज़मत को पहचानो मेरे भाई। ये पहाड़ पहचान रहे हैं, ये दरख्त पहचान रहे हैं, ये जर्रे जर्रे कायनात के पहचान रहे हैं। ऐसे जाबिर कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं मक्का के अंदर एक पहाड़, एक पत्थर को जानता हूं, मक्का के अंदर एक पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर सलाम भेजा करता था जब भी मैं उस पत्थर के पास से गुजरता था, नबी बनाए जाने से पहले। ये भी सुन लीजिए, नबी बनाए जाने से पहले सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नी लारिफु हजरन, मैं एक पत्थर को जानता हूं, कान युसल्लिमु अलैया, वो मुझे सलाम किया करता था, क़ब्ल अन उबअसा, मेरे नबी बनाए जाने से पहले। और आज भी मैं उस पत्थर को जानता हूं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं कि वो पत्थर जब मैं नबी भी नहीं बनाया गया था, मुझे रिसालत और नबूवत भी नहीं दी गई थी, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरता था, वो मेरी आजमत को जानता था, वो मेरी इज्जत और आजमत को सलाम करता था। जब भी गुजरता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बोलता था। जरा सोचिए, ये पहाड़ है मेरे भाइयों, ये पत्थर हैं, ये कंकर हैं, इनके पास अक्ल दानिश नहीं, मेरे नबी की नबूवत और आदमत को इस कदर एतराफ है, इन पहाड़ों को, इन कंकरों को, इन पत्थरों को। हम और आप हैं जो अपने नबी की नबूवत की आदमत को आज तक नहीं पहचान सकते और ना उसकी पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में थे, आपके साथ साथ चल रहे थे। कहते हैं जो भी दरख्त, जो भी पत्थर हमारे सामने से गुजरता था, कहते हैं कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो भी दरख्त, जो भी पत्थर नबी के सामने से गुजरता था, नबी चल रहे हैं रास्ते, कोई पत्थर आया, कोई दरख्त आया, सारे बैक वक्त बोलते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरे नबी की नबूवत की आज़मत है, ये आपकी रिसालत की शान है। इस हैसियत से हमें अपने नबी को पहचानना है, इस नाहिए से पूरी दुनिया वालों को हमें बताना है कि हमारा नबी कौन था, हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी की इज्जत और अजमत क्या है। ये दुनिया को बताने की जरूरत है। पहले खुद समझें, पहले खुद पहचाने, पहले खुद जाने, फिर दुनिया वालों को बतलाएंगे। हमें तो खुद अपने नबी की नबूवत की आज़मत मालूम ही नहीं है क्या है। हाज़रीन गिरामी, आप देखें इन दरख्तों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी पहचान थी। हदीस के अंदर आता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ही रावी हदीस है, कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, एक वादी में पहुंचे, आपको जरूरत पड़ी पेशाब पैखाने की, क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोटा लेकर, पानी लेकर क़ज़ाए हाजत के बाद फारिग होंगे तो आप नज़ाफ़त हासिल करेंगे, तहारत हासिल करेंगे। मैं पीछे पीछे चलने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, आपने जाबिर को थोड़ी देर के बाद कहा तुम यहीं रुको, वहीं ठहरे रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा दूर चले गए ताकि कहीं आड़ में बैठकर अपनी जरूरत पूरी कर लें। अब वो सहरा है, बयाबान है, कहीं कोई भी आड़ की चीज मौजूद नहीं है उस वादी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कोई चीज नहीं है, दो दरख्त आपको दूर दूर पर दिखे, एक दरख्त वहां, एक दरख्त वहां है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, दरख्त की एक टहनी को पकड़ा, अपने हाथ से पकड़ा, कहा अल्लाह की इजाजत से मेरे पीछे पीछे आओ। वो दरख्त चलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूर एक किनारे पर एक दरख्त था, उसकी टहनी को जाके पकड़ा, कहा आओ मेरे साथ अल्लाह की इजाजत से। दोनों दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दरख्त को हुक्म दिया, दोनों आपस में मिल जाओ। दोनों दरख्त आपस में मिल गए।
एक झाड़ नुमा बन गई, पर्दा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे बैठकर अपनी जरूरत पूरी की, और जब जरूरत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दरख्त से क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दरख्त से कहा, जाओ अपनी जगह पर वापस चले जाओ। दोनों दरख्त अपने अपनी अपनी जगह पर, एक वो किनारे था वादी के, एक वो किनारे वादी के था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सर से इशारा किया, दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह पर चलते हुए चले गए और जाकर जमीन में गड़ गए। ये मेरे नबी की नबूवत की आज़मत है, ये नबी की नबूवत की आज़मत है, आपकी ये शान है, ये शान मुस्तफ़ा है मेरे भाइयों। ये सही हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इशारा किया, इशारा किया, आपने दाएं तरफ एक इशारा किया, दाएं तरफ वाला पेड़ चला गया, बाएं तरफ इशारा किया, बाएं तरफ वाला दरख्त अपनी जगह पर चलते हुए जाकर अपनी जगह पर चला गया। ये दरख्त मेरे नबी की बात को मान रहे हैं, ये दरख्त मेरे नबी की फरमान की इज्जत रख रहे हैं। जरा सोचिए, ये सहाबा सिर्फ ऐसे थे, हमारे सलफ ऐसे थे कि नबी इशारा करते अपनी जान माल सब कुर्बान कर देते थे। लेकिन हम और आप हैं, हम और आप हैं कि नबी का इशारा तो छोड़िए, नबी के फरामीन, सख्त फरामीन सुनते हैं, जिन पर जहन्नम की वहीदें सुनाई गई हैं। नबी ने लानत भेजी है, फरिश्तों ने लानत भेजी है, आपने आदाब की धमकी दी है ऐसे ऐसे कामों पर, लेकिन फिर भी उम्मत सुनने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत उन गुनाहों को कर रही है, उम्मत सूद में मुलव्विस है, उम्मत रिश्वत खोरी में मुलव्विस है, उम्मत ग़ीबत खोरी में मुलव्विस है, उस उम्मत शराब खोरी में मुलव्विस है, उम्मत नमाज छोड़ने जैसे अजीम गुनाह का इर्तिकाब कर रही है। जरा सोचिए, ये दरख्त और ये इंसान, क्या फर्क रह गया? ये दरख्त तो नबी की बात सुन रहे हैं, इशारे समझ रहे हैं, इशारे सुनकर अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन हम और आप हैं अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक अराबी आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल, उसने कहा या मोहम्मद, मैं कैसे मालूम करूं, मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, तुम मुझे नहीं मानते रसूल, ये खजूर का दरख्त देख रहे हो, सामने खजूर का दरख्त है, अगर मैं इसकी टहनी को अपने पास बुलाऊं तो तुम मुझे नबी मान लोगे? उसने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर की ऊपर वाली जो टहनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, वो दरख्त से उतरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर गिर पड़ी। उस आराबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम अब तस्लीम करते हो, गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस टहनी से कहा, इरजा, जाओ अपनी जगह पर वापस चले जाओ, जहां तुम थी वहीं पर जाओ। हदीस के अल्फाज हैं, हत्ता आद इला मकानिही, वो टहनी अपनी जगह पर जाकर लग गई, दरख्त पर चढ़कर जाकर अपनी जगह पर लग गई। उस आराबी ने कहा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व आमनु बिका, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप पर मैं ईमान लाता हूं। इस तरह के कई वाकयात हैं मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये पहाड़ भी सुन रहे हैं, ये दरख्त भी सुन रहे हैं, ये पत्थर भी आपकी बात को मान रहे हैं। सिर्फ ये इंसान है जो आपकी पहचान इसको नहीं है, आपकी आज़मत इसको मालूम नहीं है, आपकी हैबत इसको मालूम नहीं, आपकी शान, आपकी शौकत का इल्म इस उम्मत को नहीं है। हाज़रीन गिरामी, वक्त तेजी से गुजर रहा है, एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। इस तरह के बेशुमार इस तरह के वाकयात सही हदीसों में मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के एतबार से शजर व हजर को, दरख्तों को, इंस को, जिन को, फरिश्तों को, दुनिया की हर मखलूक को आपकी नबूवत और रिसालत की पहचान थी, उसकी आज़मत का एतराफ़ था। आपको मैं बतलाऊं, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहु लैसा शैउन बैन अस्समाई वल अर्दी, इन्नहु लैसा शैउन बैन अस्समाई वल अर्दी इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। जमीन व आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं, सबको मालूम है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं।
میں اللہ کا رسول ہوں الا عاصل جن والانس، سوائے انسان اور جنات جو نافرمان لوگ ہیں۔ یہ نافرمان انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز میرے نبی کی بات کو مانتی ہے، ہر چیز ہر مخلوق میرے نبی کی بات کو سنتی ہے، میرے نبی کے فرمان کی اتباع کرتی ہے۔ صرف یہ انسان ہے، صرف یہ جنات ہے، اور جناتوں سے بھی گئے گزرے یہ انسان ہے جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ انسان اپنی نبی کی بات کو نہیں سنتا، یہ انسان اپنی نبی کی سنتوں کو نہیں مانتا، یہ انسان اپنی نبی کی حدیثوں کو سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا، یہ انسان اپنی نبی کی شان کو نہیں سمجھتا، یہ انسان اپنی نبی کی عظمت کو نہیں پہچانتا، یہ انسان اپنے نبی کے مقام کو، اس کے اعجاز کو نہیں سمجھتا۔ جو مخلوق عقل نہیں رکھتی، ہوش نہیں رکھتی، دانش نہیں رکھتی، یہ ساری مخلوقات بھی میرے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں، آپ کی فرمان کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ میرے نبی کی باتوں کو نہیں سن رہا ہے۔ افسوس ہے اسی زندگی پر کہ اللہ نے عقل دی، دانش دی، سب کچھ دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کی، لیکن پھر بھی ہم اپنی نبی کی رسالت کو آج تک سمجھ نہیں پائے۔ کیا خاک دوسروں تک ہم اپنی نبی کی نبوت کو پہنچائیں گے؟ آپ کی شان کو دوسروں کو کیسے بتلائیں گے؟ کس زبان سے بتلائیں گے جب ہماری سیرت، ہمارا کردار ہماری نبی کی سیرت کے موافق ہی نہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نبی کی شان، اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق دے۔ اللہ مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔